Hello everyone. The next chapter that we will discuss today is Unit 4, that is sampling design. So ਇਹ word ਆਪਾਂ already ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ sample ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but exactly the what is the meaning of sample is ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ population ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ units ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ research ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is what sampling. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ units ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੁਝ units ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ population ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ sampling. So what is sampling? Sampling is a process of selecting units, that is we will example people भी हो सकते हैं, organizations भी हो सकती हैं from a population of interest, so that by studying the sample we may fairly generalize our results back to the population from which they were chosen. So ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ population ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, that is what sampling. So what is a sample? A sample is a part of a target population which is carefully selected to represent the population. ठीक है, that we've already discussed कि ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ sample. Sample ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ target population ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ population ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ population ਨੂੰ represent ਕਰਨਗੇ. एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡਰ, ਯੈਲੋ ਪੇजेस. ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਚੱਕ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ. ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇजेस ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. पहली आ गई डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न, नेक्स्ट स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, देन स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग मेथड, देन डिटरमिन द सैम्पल साइज, implementing the sampling plan, sampling and data collecting and reviewing the sampling process. ठीक है, that means ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਏਗਾ. ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम इज बेसिकली ਆਪਾਂ ਕੀ यूनिट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that means a set of items or events possible to measure, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ that we will discuss further ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, probability sampling method की non probability sampling method, जो ਆਪਾਂ फर्स्ट चैप्टर ਵਿੱਚ ਵੀ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि sampling methods ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. probability that means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ population ਨੂੰ equal chance ਹੈ ਕਿ ਉਹ select ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ non probability that means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ convenience ਆਪਣੀ judgment according method select ਕਰਦੇ ਆ. third comes determine the sample size. ठीक है, थोड़ा sample size कितना होएगा, आप large population select करनी है कि थोड़े विचों बनानी, that is your sample size. next implementing the sampling plan. आप obviously कुछ भी काम करने तो पहले आप plan तैयार कर लेने हैं, ठीक है, आप plan की बनाना है किवें करना है वो आप हम implement करेंगे. next plan implement करता उसके बाद आप करेंगे sampling and data collecting. हम actual जो आप जाके डाटा कलैक्ट करांगे एंड लास्ट आ गया ਆਪਾਂ अपने प्रोसैस ਨੂੰ रिव्यू करना. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसैस विच ए 7 स्टेजेस आंदियां ने. सो नेक्स्ट कम्स डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग. सेंसस ते सैम्पलिंग दा बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सेंसस ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਕਦੋਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ. ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੋਏਗੀ, ठीक है, फंड्स होंगे तो मैं सारी पॉपुलेशन को कर पाऊंगी. अगर तो लार्ज पॉपुलेशन होएगी तो उस उन्ना तो डाटा कलेक्ट करना इट इज़ नेक्स्ट टू एक्सपेंसिव. ठीक है, वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है और मे बी मेरे को फंड्स इन्ने अवेलेबल ना हो. सो वो कह रहे कि सेंसस कदों एप्रोप्रिएट होएगा जदों साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल.
ठीक है ਤਾਂ जो अगर small है तो आप सेंसस मैथड लगा सकते हैं उस विच आप हर एक आइटम ਨੂੰ सिलेक्ट करके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ डाटा कलैक्ट कर ਲਾਂਗੇ बट सैंपलिंग कदों एप्रोप्रिएट है जो पॉपुलेशन लार्ज है तो आप सारी पॉपुलेशन नहीं पढ़ पावांगे तो आप सैंपलिंग करांगे या जो टाइम ते कॉस्ट मेन कंसिडरेशन होंगी ऑब्वियसली अगर मेरे को टाइम ही नहीं है मेरे को कॉस्ट ही नहीं है तो की करूँगी मैं सैंपलिंग अडॉप्ट करूँगी या जो पॉपुलेशन होमोजीनियस है इक्को तरह की पॉपुलेशन है फिर मैं उन्होंने को जाके क्यों बार बार जाके डाटा कलैक्ट करना सो भी मैं सैंपल एप्रोप्रिएट होएगा सो ये मैथड्स कदों कदों एप्रोप्रिएट होंगे है कि जो सेंसस होएगा जो तुहाडी पॉपुलेशन स्मॉल होएगी एंड सैंपलिंग ऑन द अदर हैंड तो उदों पॉसिबल है उदों एप्रोप्रिएट होएगा जदों तुहाडे सैंपलिंग विच सारी पॉपुलेशन की है लार्ज होएगी एंड ऑल्सो फोर्थ पॉइंट की आंदा कदों सैंपलिंग ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया आपां फोर्थ पॉइंट आंदा कि देयर आर सर्कमस्टांसिस व्हेन अ सेंसस इज नॉट पॉसिबल सो दे आर सेइंग कि एक होर भी केस हो सकता कहते जो तुहानूं पता है कि सेंसस पॉसिबल नहीं है तो उस केस विच की होएगा तां भी आपां सैंपलिंग करांगे सो दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग एंड सेंसस नेक्स्ट कम स्टेप्स ऑफ सैंपलिंग डिजाइन फर्स्ट आंदा डिफाइन द पॉपुलेशन ये 7 स्टेप्स आएंगे पहला आगे डिफाइन द पॉपुलेशन दूसरा आइडेंटिफाइंग द सैंपलिंग फ्रेम थर्ड specify the sampling unit then selection of sampling method then determination of sample size then specify sampling plan and last is select the sample ठीक है ये ਆਪਾਂ एक पॉइंट्स ਨੂੰ एक्सप्लेन करते हैं नाल कि एग्जाम्पल भी है गिवन है ऑलरेडी पहली आगे ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ਸੀਗਾ डिफाइन दी पॉपुलेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ कि एलिमेंट्स की नहीं मतलब मेजर आप कि उपर स्टडी कर रहे हो आएंगे फिर सैंपलिंग यूनिट्स आएंगे एक्सटेंट मीनस एरिया एंड टाइम मतलब किस टाइम की गल हो रही है एग्जाम्पल गिवन है इफ वी आर मॉनिटरिंग द सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट recently introduced by a company say shampoo sachet the population will be पहले देखो एलिमेंट की है कि बारे आप पढ़ रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट बारे ठीक है सो थोड़ा एलिमेंट आ गया जिस चीज़ बारे आप पढ़ रहे हैं ठीक है सैंपलिंग यूनिट की है रिटेल कंपनी है वो पॉपुलेशन है की चीज़ है सुपरमार्केट है रिटेल आउटलेट है कि आप सैंपलिंग यूनिट लिख देंगे एक्सटेंड मीन्स कितने तक है वो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड टाइम की है April 10 to May 10 2006 दैट मीन्स आप इस चीज़ बारे पढ़ रहे हैं दैट इज योर डिफाइन द पॉपुलेशन नेक्स्ट कम्स आइडेंटिफाई द सैंपलिंग फ्रेम विच की आएगा ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ भी हो सकती है किसी चीज़ की लोकेशन भी हो सकती है कोई होल लिस्ट जो ਤੁਹਾਡੇ सैंपलिंग यूनिट्स बारे ਤੁਹਾਨੂੰ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप कितों डाटा ले सकते हैं दैट इज योर सैंपलिंग फ्रेम एग्जाम्पल है यू वांट टू लर्न अबाउट स्कूटर ओनर्स इन अ सिटी सो the RTO will be the frame which provides you names address कहते तुसी स्कूटर ओनर्स बारे पढ़ना है तो कहते जो RTO होंगे वो की होंगे वो तुहानू सारे नेम्स वगैरह सारे एड्रैस वगैरह किस तरह के वो व्हीकल्स रखते हैं वो तुहानू सारा कुछ वो दसणगे ठीक है सो दैट वॉज अबाउट कि तुहाडे सैकेंड पॉइंट सीगा आप सैंपलिंग फ्रेम देखना कि आप कितों डाटा ले सकते हैं सो एग्जाम्पल आप देख ली कि आप स्कूटर ओनर्स बारे पढ़ना सिटी बारे सो RTO दैट इज योर रीजनल ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस होएगा वो तुहानू दसेगा जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो दसेगा तुहानू कि की लोग किन्ना व्हीकल्स लेके जा रहे हैं थर्ड आ गया थोड़ा स्पेसिफाई द सैंपलिंग यूनिट सो इंडिविजुअल्स हु आर टू बी कॉन्टैक्टेड किदे कोल आप जाके कॉन्टैक्ट करांगे उन्होंने आप कहने सैंपलिंग यूनिट ठीक है मैं किसी हाउस होल्ड लोगों को जा रही हाँ या किसी को मैं प्रोफेशनल पर्सन को जा रही हाँ सो मैं किदे को जा रही हूँ डाटा कलैक्ट करने वास्ते वो मैं लिख दी सैंपलिंग यूनिट विच नेक्स्ट कम सिलेक्शन ऑफ द सैंपलिंग मैथड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मैथड्स दैट मीनस फर्स्ट विच आंदा कि सारे आइटम्स इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी विच आंदा है कि वो की है अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप मैथड्स सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट कम्स डिटरमिन द सैंपल साइज दैट मीनस आप
ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਨੂੰ, that also it is your sample size। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ errors ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ that means ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ sample size ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ errors ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ chances ਹੈਗੇ। next comes specify the sampling plan। so a sample plan should clearly specify the target population। improper defining would lead to wrong data collection। ठीक है, so they are saying कि साडा plan है ਆਪਾਂ की steps follow करने सानू equal ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ improperly ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ define नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ तो obviously ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ डाटा जाके collect कर लोगे। so example given in which this means that if a survey of a household is to be conducted, a sampling plan should define a household, that is, does the household consist of husband or wife or both or minors etc। so ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ कि कल वाइफ है, कि वो दोनों जाने ने या माइनर्स भी, दैट मीनस बिलो 18 ईयर्स कौन है। सो अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो सानू एक एक चीज़ प्रॉपरली क्लैरिफाई होएगी तां ही आप एक्चुअल च ते करेक्ट डाटा कलैक्ट कर पाओगे। लास्ट कम सेलेक्ट द सैंपल। सो दिस इज द फाइनल स्टेप इन द सैंपलिंग प्रोसेस। नैक्सट कम्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल डिज़ाइन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਮੈਜ਼ਰੇਬਿਲਟੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ numeric ways ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ यूजली जो डाटा आप कलैक्ट करते हो आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है। सो आप डाटा ਨੂੰ मेजर भी कर पाइए। नैक्सट है प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, दैट मीनस साडा डाटा कलैक्ट करन दा बिल्कुल यूज नहीं है अनटिल एंड अनलैस आप ਉਹਨੂੰ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप डाटा उदा कलैक्ट करना कि आप ਉਹਨੂੰ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाइए। एंड इकोनॉमी, दैट मीनस ਸਾਨੂੰ ज़्यादा खर्चा नहीं पैना चाहिए। सो सारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होंदा है कि साडे मिनिमम कॉस्ट ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ 4 characteristics of a good sample design। so next very important question comes for 10 marks, that is types of sample design। sample design ਦੇ ਕੀ types ਹੁੰਦੇ ਆ, probability and non probability। probability ਦਾ मतलब है कि every unit in the population has equal chance to select हो सकता है, and non probability ਦੇ vice versa ਦੇ opposite कि हर एक ਨੂੰ equal chance नहीं ਹੁੰਦਾ, ठीक है। so different types ਆਉਂਦੇ probability sampling techniques ਦੀਆਂ 5 ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ random sampling। random is basically your best example is your lottery system। that means ਆਪਾਂ randomly ਕੋਈ ਵੀ slip ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਟਰੀ ਮੈਥਡ that you are all aware of it ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, that is your Tibbetts table। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, that means randomly ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨੀਚੇ। taking the earlier example of stores we must number the stores, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 4 stores ਲੈ ਲਏ ਹੈ, A, B and C, D, and we have assigned 4 numbers to it, ਠੀਕ ਹੈ। A ਨੂੰ 1 ਦੇਤਾ, 2 ਨੂੰ B ਨੂੰ 2, C ਨੂੰ 3 and D ਨੂੰ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, suppose we start with the second row in the first column। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 8 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 0, that means 0 ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਗਨੋਰ ਇਟ, 0 ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ since it does not correspond to any of the stores in the population। so next digit on the diagonal is 1, ठीक है। next ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ 808 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, that means 1 ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, A ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 8,
सो 8 भी किसी ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੋਰ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so pick A and proceed until we get the two samples. So in this case the two departmental stores are 1 and 4. So the sample derived from this consists of departmental stores A and D. So ये दो ਤੁਹਾਡੇ स्टोर select हो गए A and D. Next comes equal probability. That means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जो भी सैम्पलिंग करांगे, ठीक है, मैं एक स्लिप चक्की फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 स्लिप्स ने, मैं एक स्लिप चक्की उस तो बाद जो मैं दोबारा स्लिप चकनी है मैं ओवली स्लिप ने दोबारा पाता। दैट मीन्स मैं रिप्लेसमेंट तो रिप्लेसमेंट कर रही, दैट मीन्स उन्हें मैं दोबारा पा रही है, ठीक है। दैट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी। एंड वेरिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं ये रिप्लेसमेंट नहीं कर रही। अगर मैं स्लिप कट ली बाहर तो मैं साइड पर रखता। हूँ लास्ट अगर मेरे को 100 चिट्स ने, दैट मीन्स उनमें एक कट ली 99 रह गए, ठीक है। हम मैं 99 विचों अगली स्लिप कर दूँगी, ठीक है। दैट रिमेन्स 98। तो इनू आप कहने वेरी प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स ये मैं रिप्लेसमेंट नहीं करती, ठीक है। सो ये थोड़े फर्स्ट मैथड आता है रैंडम सैम्पलिंग के अंडर। रैंडम सैम्पलिंग होंगे कि हर एक आइटम में इक्वल चांस है। ये दो मैथड्स होंगे लॉटरी मैथड एंड यूजिंग रैंडम नंबर्स टेबल। आगे उस तो बाद आ गया रैंडम सैम्पलिंग में दो पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती ने, जो हो गया इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड वेरिंग प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट मैथड कम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेम तो ही क्लीयर हो रहा है कि आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सैम्पलिंग करने वास्ते, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या आ गया सैम्पलिंग इंटरवल K इज डिटरमिनड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। सैम्पलिंग इंटरवल किवें आप देखना कि आप केड़ी आइटम सिलेक्ट करनी हो, आप किवें देखते हैं। पहला आ गया K इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स डिजायर्ड इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट 1 यूनिट बिटवीन द फर्स्ट एंड द kth यूनिट इन द पॉपुलेशन लिस्ट इज रैंडमली चूजन। एंड उस तो बाद जो भी होंगे आप उस अकॉर्डिंग अगले नंबर चूज करते हैं। दैट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन एग्जाम्पल नीचे गिवन है Consider 1000 households from which we want to select 50 units। कहते देखो 1000 households given और असी 50 यूनिट सिलेक्ट करने कि सिलेक्ट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 50। सो दैट मीन्स टू सिलेक्ट द फर्स्ट यूनिट ਇਹਦਾ आंसर क्या आया 20, ठीक है। सो आप पहले 20 विचों कोई भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ले ला 15, दैट मीन्स 15 उस बाद अगले 20 15 then 35 then 55। दैट मीन्स मैं रैंडमली आंसर मेरा 20 आया, पहले 20 विच मैं कोई भी सिलेक्ट कर लिया। उस तो बाद मैं सिस्टमैटिक वे नाल ही उन्नी यूनिट सी उन्नी गैप विच लेने, ठीक है। इस एग्जाम्पल से 1000 डिवाइड बाय 50 दैट इज 20। इन्होंने पहला रैंडमली नंबर ले लिया 17। सो 17 तो बाद प्लस 20 दैट इज 37 then plus 20 that is 57। 8 numbers continue होंगे till 1000। so that is your systematic random sampling। आप एक system follow करते हैं उस according ही sampling करते हैं। next comes stratified random sampling, ठीक है। that means a probability sampling procedure in which simple random sub samples are drawn from within the different strata that are more or less equal to some characters, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि आप इन्हों एक स्ट्रैटास एक ग्रुप विच जो भी पॉपुलेशन होएगी उन्होंने आप ग्रुप्स विच बना लांगे, उन्होंने आप कहने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जिमें थोड़ा एग्जाम्पल हो सकते कि आप कह रही कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। दैट मीनस प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब की है कि ये विचों जो है द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैंडम इज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या कि मेरे को कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स विचों 500 कमर्स के ने, 300 मैडिकल दे एंड 200 आर्ट्स। दैट इज योर 1000 स्टूडेंट्स। हुण मैं की क्या कि मैं हर एक विचों की करने हैं 10% कटूँगी। दैट मीनस 500 द 10%,
300 ਦਾ 10% ਐਂਡ 200 ਦਾ 10%। दैट मीन्स ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ proportionate stratified sampling, ठीक है, that is your proportionate। disproportionate ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ 1000 ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੀ ਕੱਢੂੰਗੀ। दैट मीन्स मैं कोई इक्वल पॉपुलेशन लीती, हर एक ਵਿੱਚੋਂ मैं की कर लिया 100 बच्चा काट लिया। दैट इज़ योर डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मैं क्राइटेरिया नहीं रखा कि मैं सब तो 10% लेना है, मैं किया डिसप्रपोर्शनेट एक नंबर रख लिया कि उन्नी ही मैं लैने। दैट इज़ योर डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो नैक्सट कम्स आप ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना, सो यू जस्ट हैव टू लर्न द मैथड्स ओनली। नेम मैथड्स की ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਆਂਦੇ। दिस you don't have to do is a selection by proportionate stratified sampling ये वगैरह ਆਪਾਂ कुछ भी नहीं करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। प्रैक्टिकल पोर्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं आएगा, just you have to do the theoretical part। so next method comes cluster sampling। so what is cluster sampling? The population is divided into clusters। a simple random sample of few clusters is selected। all the units in the selected cluster are studied, ठीक है। example ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। suppose we have a population of 20 units from which we wish to select 500 units। so choosing a sample of that size is a very time consuming process if we use random numbers table। so the entire population is divided into 80 clusters of 250 units each। so we can choose 2 sample clusters, that means 2 into 250, that is 500। so easily by using cluster sampling। the most difficult job is to form clusters। in marketing the researcher forms clusters so that he can deal with each cluster differently। so what they are saying कि कहते अगर आप सिंपल तिब्बत टेबल लगाने हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बहुत चीज़ डिफिकल्ट है पढ़ना। क्लस्टर्स इज बेसिकली आप एक छोटे छोटे पार्ट्स ਵਿੱਚ एक क्लस्टर्स बनाने, उस अकॉर्डिंग आप ये सैम्पलिंग टेक्निक स्टडी करते हैं। अगर आप तिब्बत टेबल लगावांगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप वो चीज़ ਨੂੰ फ्रेम कर पाइए। सो आप कह रहे कि अगर आप रैंडम नंबर्स लईए, ठीक है, रैंडम नंबर टेबल्स के बजाय आप एक रैंडमली इदा ही नंबर्स पिक आउट कर लीए ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 80 ਕਲਸਟਰਸ ਆਫ 250 ਯੂਨਿਟਸ ਈਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 250 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 80 ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਤੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ दैट इज इक्वल्स टू 20,000। सो वी कैन चूज 2 सैम्पल क्लस्टर्स ईजिली बाय यूजिंग क्लस्टर सैम्पल। अगर आप क्लस्टर्स बनाए होंगे कहना तो पढ़ना उन्होंने बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल गिवन है, एज्यूम देयर आर 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। 20 हाउसहोल्ड्स ने, दैट मीन्स वी नीड टू सिलेक्ट 8 हाउसेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਘਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ 8 ਹਾਊਸਿਸ ਐਟ ਰੈਂਡਮ। ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਲਸਟਰਸ ਈਚ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 4 ਹਾਊਸਿਸ। ਯੈਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫॉर एग्जांपल मेरा घर पार्क फेसिंग ਵਿੱਚ ਹੈ, दैट मीन्स 4 साइड्स से घर होंगे पार्क के आस पास। दैट मीन्स वो की कह रहा है कि रैंडमली या तो मैं की करा कोई भी 8 घर चूज कर ला, ठीक है। मैं की किया 2 गलियों डिवाइड करता, ऑपोजिट जो मेरी लेन्स ने उन्हें मैं डिवाइड करता। सो जिन्हें घर जो 8 घर ने तो या तो मैं रैंडमली उन्होंने सिलेक्ट कर ला, या दूसरी चीज़ मैं की कर सकती है की करा मैं कोई भी 2 क्लस्टर्स बनाई सी मैं किया मैं ऑपोजिट जो लेन्स उन्होंने मैं कंबाइन किया। दैट मीनस मैं 2 विचों 4 कार कर लूँगी, या बाकी 2 रिमेनिंग लेन्स विचों 4 कार सिलेक्ट कर लूँगी। सो दैट इज़ वॉट योर क्लस्टर सैम्पलिंग। नैक्सट कम्स हुण इन्हें एक होर एग्जाम्पल गिवन है क्लस्टर्स की आ। हुण की करा अगर मैं लुधियाने विच पंजाब की गल करिए, पंजाब विच मैं लुधियाना ले लिया, लुधियाने विच मैं केड़ा ले लिया डुगरी रीजन, डुगरी विच मैं केड़ा लेता लोकेलिटी डुगरी फेज 2। फेज 2 विच मैं कितने लिता घर सैम्पलिंग वास्ते मैं केड़ी सोसाइटी सिलेक्ट की है। सो दैट इज़ वॉट क्लस्टर्स, मैं पार्ट्स विच उस चीज़ को डिवाइड करिए। देखो एग्जाम्पल गिवन है, सपोज वी वांट टू हैव 75
100 households from all over the country. In such a case, from the first state district, say 30 districts ने और विचों 600 are selected from all over the country. तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ 5 ਸਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡਸ ਜਾਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਡੁਗਰੀ, ਡੁਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ਕਲਸਟਰਸ। मतलब मैं उस अकॉर्डिंग क्लस्टर्स फॉर्म करते, ग्रुप्स फॉर्म करते, उन्होंने आप कहने क्लस्टर सैम्पलिंग। नैक्सट कम्स मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। दैट मीनस ये तुहानू नेम तो क्लीयर हो रहा है कि आप मल्टीपल एक डिफरेंट एक सैम्पलिंग वास्ते आप मल्टीपल चीज़ा कर रहे हैं, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल गिवन है, द मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूली ओपन क्लब इज सॉलिसिट्स न्यू मैंबरशिप, ठीक है। दैट मीनस एक क्लब की मैंबरशिप न्यू होनी है। ये पहले राउंड की किया उन्होंने उन्होंने क्या कि जो कि कंपनीज या जो इंडिविजुअल्स इंटरस्टिड है अपने आप नाम एनरोल करवाने वास्ते, ठीक है। दूसरा राउंड में किया कि जो अपने डिफरेंट जिन्होंने हम जो नाम फाइनल एनरोल करा जो कि थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने वास्ते तैयार है, ठीक है। मतलब वो जिवें थोड़ी बिलियर्ड्स होगी, इंडोर स्पोर्ट्स हो गई, स्विमिंग होगी, जिम होगी, ठीक है। दैट मीनस आप उन्होंने नेम लिखनी है, ठीक है। उस तो बाद कि ए फर्स्ट में नाम किन्ने एनरोल करवा रहे ओ, दूसरा कौन कौन किस किस एक्टिविटी लिए इंटरस्टेड है ओ, एंड थर्ड मैं की कीता थर्ड स्टेज विच कि जो जिस एक्टिविटी विच इंटरस्टेड है उन्होंने मैं अलग अलग लिस्ट बना दी। दैट इज़ योर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। दैट मीनस आप एक बारी विच ने डिफरेंट स्टेजेस में फॉलो करके आप ये मैथड फॉलो करते हैं। नैक्सट कम्स एरिया सैम्पलिंग। सो वॉट इज़ एरिया सैम्पलिंग? एरिया सैम्पलिंग का मतलब है कि मैं एक एरिया में जा रही हाँ, ये भी थोड़ी स्पेशल फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग है। दैट मीनस एक मैं एरिया देख लिया, उस अकॉर्डिंग मैं सैम्पलिंग सिलेक्ट कर रही हूँ। सो if someone wants to measure the sales of a toffee in retail stores, one might choose a city locality and then audit toffee sales in retail outlets in those localities। कहते मतलब मैं जिथे भी करें मैंने एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तरह की क्लस्टर सैम्पलिंग ही होगी कि मैंने एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कितने जाके अपनी सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल वही है कि किसी ने अपनी सेल्स करनी टॉफी तो देखनी रिटेल स्टोर्स विच की किन्नी सेल हो रही है। दैट मीनस वो पहला जाएगा देखेगा कि मैं कितने कि लोकैलिटी विच देखा कि जिथे वो लोकैलिटी सिलेक्ट करेगा, उस तो बाद रिटेल शॉप सिलेक्ट करेगा जितों वो ये डाटा कलैक्ट कर सकता। सो दैट इज़ ऑल योर अबाउट की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दी टेक्निक्स आंदियां ने। आप डिफरेंट टेक्निक्स सिलेक्ट स्टडी कीतियां ने। पहली आ गई तुहाडी लास्ट है तुहाडी एरिया सैम्पलिंग, दैन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, दैन कम्स योर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग तो पहला आंदी है तुहाडी stratified sampling, then next comes systematic random sampling, and सब तो basic first है तुहाडी random sampling. So these are the 5 types of probability sampling techniques.